بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسلادھار بارش، مختلف علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے باعث G8 مرکز میں پانی جمع ہو گیا، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بنی گالا اور بھارا کہو میں موسلادھار بارش، شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کے باعث سری نگر ہائی وے پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، اکثر علاقوں میں گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی۔ بارش سے مارگلا روڈ پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ سید پور میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، راولپنڈی میں بھی بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے زمان مغل سے۔ زمان، اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، موسلادھار بارش کی وجہ سے اسلام آباد کے تمام جو سیکٹرز ہیں ان میں پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ اس میں بالخصوص جو شہر کے وسطی سیکٹر ہیں اس میں سیکٹر G8 ہے، سیکٹر G7 ہے، سیکٹر G6 ہے اور سیکٹر I9 I10 ہے۔ وہاں پہ پانی اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ سڑکیں بظاہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اور گاڑیاں اس میں ڈوبنے لگی ہیں، اور شہر کے جو رورل ایریاز ہیں اس میں بنی گالا ہے، سید پور ہے، ان ایریاز میں بھی جو ندی نالے ہیں اس میں پانی جو ہے وہ شدید اس کا بہاؤ ہے۔ اور دوسری جانب دلی انتظامیہ اور CDA کی طرف سے وہ ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ تمام جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کے ٹریفک کی روانی کے لیے اور پانی کی نکاسی کے لیے جو امدادی ٹیموں کی ہیلپ کریں۔ تب ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی الرٹ جاری کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک دو تصویریں بنتی ہیں، تصویریں بننے کے بعد انتظامی افسران جو ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں اور عملہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اور شہر کو جو ہے وہ پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت میں شدید بارش کے باعث جو ہے وہ مختلف سیکٹر جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں اور نکاسی آب کی صورتحال جو ہے ناگفتہ بے ہے۔ جی زمان، یہ کہے گا کہ سب سے زیادہ کس علاقے میں بارش ہوئی ہے اور وہاں پر اس وقت کیا انتظامیہ کے اہلکار موجود ہیں پانی کے نکاس کے لیے؟ سیکٹر G8، سیکٹر G7 اور I9 جو سیکٹر ہیں ان میں اس وقت شدید پانی ہے، اور پانی کی نکاسی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو بظاہر کئی گھنٹے جہاں سے پانی کی نکاسی ممکن نہیں ہوگی، اور انتظامی افسران بھی ابھی تک وہاں پہ نہیں پہنچے، اور نہ ہی کوئی CDA کے جو واٹر سینیٹیشن والے لوگ ہیں، جو باقی ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔ تاہم جو دلی انتظامیہ کے دفتر سے ایک الرٹ جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر حضرات جو ہیں وہ فیلڈ ایریا میں نکلنے کا عملی طور پر وہ کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آ رہے۔ زمان، یہ بھی کہیے گا کہ کیا بتایا جا رہا ہے اسلام آباد کے موسم سے متعلق کہ بارش کب تک جاری رہے گی؟ بارش ہوگی وقفے وقفے سے ہوگی یا پھر 2 سے 3 روز تک ہوگی؟ بارش کے حوالے سے جو مونسون ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کم و بیش یہ 10 سے 13 ستمبر تک اس کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس میں وقفے وقفے سے بارشوں کا عمل جو ہے وہ رہے گا، اور 10 سے 13 ستمبر تک جو ہے اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اور آج جو اچانک بارش ہوئی ہے، اتنی موسلادھار بارش تھی کہ چند ہی منٹوں میں مختلف سیکٹر جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہیں، اور انتظامی افسران جو ہے ابھی تک اس حوالے سے جو ہے وہ بندے عام پر نہیں آئے، اور انہوں نے کچھ بھی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے شہری یہ سمجھ سکیں کہ یہاں سے کوئی پانی کی نکاسی جو ہے اس کے لیے کچھ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور الرٹ کی حد تک یہ کہا گیا ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ فیلڈ میں نکلیں اور نکاسی آپ کے لیے اقدامات کی نگرانی کریں۔ بہت شکریہ۔ بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل اس حوالے سے آگاہ کرے تھے۔ تاہم اسلام آباد کے شہریوں کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام ہے اور طغیانی ہے، تیز بارش ہوئی ہے جس کے باعث شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں، اور خاص طور پر اسلام آباد کے شہریوں کے لیے، کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت بہت تیز اور بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور طغیانی کا ماحول ہے، اور تیز بارش کے باعث ٹریفک بھی اس وقت مختلف شاہراہوں پر جام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم شہری غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں۔ اس متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں تیز بارش ہوئی ہے جس کے باعث ہر طرف پانی پانی ہے، اور خاص طور پر G8 مرکز اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اس وقت صورتحال ابتر ہے۔ ملکہ کوہسار مری میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش نے ہر طرف جل تھل ایک کر دیا ہے، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، بارش سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ملکہ کوہسار مری میں موسلادھار بارش جاری ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے اور بارش سے ہر طرف جل تھل، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ ندی نالوں میں طغیانی، پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے۔ ملکہ کوہسار مری سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بارش سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، شدید بارش ہوئی ہے جس کے باعث ملکہ کوہسار سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت طغیانی ہے اور بارش سے ہر طرف جل تھل ایک، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ ندی نالوں میں طغیانی، پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے۔ ملکہ کوہسار مری کا موسم بھی شدید
सर्द हो गया है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह पानी का बहाव तेज है और ये मनाजर आप देख सकते हैं मरी से माल रोड से। कुदरत के खिलाफ स्कीमें बनाने से नेचर रिएक्ट करती है। माहौलियाती तवाज़ुन बिगाड़ने से मुल्क भर में क्लाउड बस्ट और बारिशों की सूरत में कुदरती आफात आ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहना था कि मेरे ज़िला में 2 दरिया और 6 बरसाती नाले दाखिल होते हैं जो कश्मीर और जम्मू से आते हैं और हालिया बारिशों में इन्हीं नदी नालों और दरियाओं ने तबाही मचाई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लोग बरसाती नालों और दरियाओं की जमीन पर कब्जे करके प्लॉट बनाकर बेच देते हैं। यही जमीन दरअसल दरिया और नदी नालों की मिल्कियत है जिन पर कब्जों ने तबाही में इजाफा किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि फरवरी 2022 में डिप्टी कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को सूरत हाल से मुतालिक खत भी लिखा था, लेकिन इंतजामिया ने सिर्फ आर्जी इक़दामात किए। और दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग, 9 अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सतलुज में भारत की तरफ से पानी छोड़ने के बाद पीडीएमए ने ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। पीडीएमए के मुताबिक भारत की तरफ दरिया सतलुज में हरिके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रैले से 9 अजला मुतासर होने का खदशा है। इस्लामाबाद से कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर और पाकपतन मुतासर होंगे। मुमकिन मुतासरा अजला में विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ भी शामिल हैं। पीडीएमए के मुताबिक मुतलका अजला के डीसीज को मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए फौरी इंतजामात करने की हिदायत भी की गई है। भारत की जानिब से बगैर इतला सलाल डैम से दरिया चनाब में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सियालकोट हेडमराला के मुकाम पर बड़े सैलाब का खदशा है। भारत ने चंद रोज कबल भी 9 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला छोड़ा था। पंजाब में पहले ही सैलाब से 2200 देहात मुतासिर, 20 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं जबकि 10 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। चिनाब, रावी, सतलुज में आने वाले सैलाबी रैले से दर्जनों देहात बदस्तूर ज़िर-ए-आब हैं। सैलाबी रैलों से बहावलपुर में 7 बंद टूट चुके हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़िर-ए-आब आ गई। चिनाब में सैलाब का बड़ा रैला आज रात मुल्तान से गुजरेगा। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड पर डायनामाइट नस्ब कर दिया गया है। पंजाब के 15 अजला में हाई अलर्ट जारी है। कसूर में दरिया सतलुज हेडगंडा से डाउन स्ट्रीम पर सैलाबी रैला बिफर गया है। मुतादिद देहात ज़िर-ए-आब आ गए हैं जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। कुचियावाला गांव में रास्ते पर 10 फीट तक पानी जमा हो गया। इलाका मकीन घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके बस्ती मोहम्मद मराली में दरिया चनाब की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। सैलाबी पानी दाखिल होने से हजारों एकड़ खड़ी फसलें ज़िर-ए-आब आ गई हैं। किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं जबकि मुतासरा देहात के रहायशी नकल मकानी पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद इरफान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल के नवाई इलाका बस्ती मोहम्मद मिराली दरियाए चनाब के मकाम पे। जैसे कि इस वक्त जो दरियाए चनाब में पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। अगर मेरे पीछे आप देख सकें तो इस वक्त यहाँ पे हज़ारों एकड़ पे जो फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। लोगों के घरों में इस वक्त जो पानी है वो दाखिल हो चुका है और इस वक्त जो मुसलसल है दरियाए चनाब में जो पानी की सतह है वो बुलंद होती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ऊंचे दर्जे के सैलाब के हवाले से तो इस वक्त जो हेड त्रिमू का मकाम है वहां से 5,50,000 क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है। मजीद ऊंचे दर्जे के सैलाब मुतवक्के है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंतजामिया के हवाले से तो तहसील इंतजामिया इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है। जी, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हडोर गांव के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया जिसके नतीजे में पायलट समेत 5 एहलकार शहीद हो गए। इस बात की तस्दीक ISPR ने खुद की है। ISPR के मुताबिक हादसा थकदास कैंट से 12 किलोमीटर दूर सुबह 10 बजे पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था कि दौरान परवाज अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई। हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। शुहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नायक आमिर भी शामिल हैं। जनरल अस्पताल लाहौर की नर्सरी से 2 दिन का बच्चा अगवा हो गया। तर्जुमान के मुताबिक बच्चा नर्सरी वार्ड इंतजामिया की गफलत के बायस अगवा हुआ। फोरेंसिक माहिरीन की मदद से तमाम शवाहिद जमा किए गए हैं। बच्चे के वालिद अफजाल की मुद्दत में 2 नामालूम खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली नासिर से। जी अली नासिर, बताइएगा क्या वाक़या है? जी बिल्कुल, लाहौर के सरकारी अस्पताल से नौमौलूद बच्चों के अगवा का सिलसिला थम न सका। जनरल अस्पताल की इमरजेंसी से ये बच्चा अगवा हो गया। लाहौर काना
9 की रिहायशी खातून के यहाँ जनरल अस्पताल में सर्जरी से बेटे की पैदाइश हुई थी। जनरल अस्पताल एमरजेंसी से बच्चे को नर्सरी एमरजेंसी में शिफ्ट किया गया था। इजराइल अस्पताल ये बताते हैं कि नर्सरी से 2 नकाबपोश खवातीन ने बच्चे को अगवा किया। अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे के अगवा पर फिलहाल तो शुरू में तो मौक़िफ़ देने से ग्रेज किया, लेकिन मुतासरा फैमिली के बच्चे के अगवा की दरखास्त थाना कोट लखपत में दे दी गई है, जिसके बाद जनरल अस्पताल की जो इंतजामिया है वो भी हरकत में आई। उन्होंने फौरी तौर पर जो मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल का नोटिस इंतजामिया से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। शकीला बीबी और मोहम्मद उस्मान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वार्ड सिस्टर इंचार्ज स्टाफ नर्स के जवाब तलबी महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ये जनरल अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। प्रिंसिपल फारूक सही, सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की मुतासर अफराद होने वाले अफराद के लिए पेशगी इक़दाम करने की हिदायत। उन्होंने कहा मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए। मुराद अली शाह का कहना था सिंध हुकूमत सैलाब और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत सिंध ने सूबे के तमाम सियाहती मकामात पर सयाहों के जाने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से 4 सूबों को जारी करदा खत में वाज़े किया गया है कि हालिया मानसून की बारिशें शदीद नौयत की हैं, जिसके बायस कई सयाहती इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और पहाड़ी इलाकों में तूदे गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। हिफाजती इक़दाम के तहत चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम कमिश्नर्स और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फौरी तौर पर सयाहों को रोकने के अहकाम जारी किए हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स ने मुतलका इलाकों में अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब के फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद खान को हुकूमत पंजाब की जानिब से आला सिविल अवार्ड देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उनकी बेमिसाल खिदमात के इतराफ़ में यह एजाज़ देने की मंजूरी दी। साथ ही मरहूम के वर्सा को 1 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इनके कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फुरकान अहमद ने मुश्किल तरीन हालात में अवाम की मदद करते हुए अपनी जान और कुर्बान की है और इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। ये फैसला न सिर्फ इनके कुर्बानी के एतराफ़ है बल्कि सरकारी अफसरान के लिए एक मिसाल भी है कि अवामी खिदमत का जज्बा किसी भी ज़ाती तकलीफ से बालातर हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप और झंग के करीब फील्ड हस्पताल का दौरा, जिला इंतजामिया के इक़दाम का जायजा लिया, अद्वियात और इलाज मुआलजे की फरहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने झंग शहर से मुल्का हिफाजती बंद का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मुतासरा अफराद को कैंपों में खाना और तिबई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू ऑपरेशन के दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। कहा अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सिंध में सुपर फ्लड से निमटने की तैयारियां। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटरीट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना। चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा दरिया सिंध में 8 से 10 लाख क्यूसिक पानी का रैला आएगा। 9 लाख क्यूसिक से ऊपर सुपर फ्लड होता है। हमने सुपर फ्लड समझकर कोशिश करनी है। सबसे पहले इंसानी जानों को बचाना है। बेराज और बंदों को महफूज रखना होगा। लोगों का इनखला शुरू कर दिया। पाक फौज और आर्मी से मदद लेंगे। तरीमो के मकाम पर इस वक्त 5,50,000 क्यूसिक का शदीद सैलाब है। तरीमो से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज ने शकरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दरियाए रावी, नाला डेक, नाला बई और ऊज में आने वाले सैलाब से लाखों एकड़ अराजी, फसलें, सड़कें और फिर पुल भी तबाह हो गए हैं। घरों, कारोबार और माल मवेशियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि मजीद सैलाब का खदशा मौजूद है। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू मुतासर इलाकों में काम कर रहे हैं, मगर हुकूमत और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बहाली के लिए कोई वाज़ेह मनसूबा या अमली इक़दाम नजर नहीं आ रहा। उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसको जिन्होंने परवरिश करनी उन्होंने देखना है। तो इसलिए आप कम से कम उनकी जो ये नुकसान हुआ है उनको इतना करें कि वो अपने छत ठीक करवा सकें, अपने माल मवेशी का ख्याल रख सकें, अपने बच्चों का अगर कोई इलाज करवाना है, कोई डॉक्टर मंगवाना है, जाना है उनको लेके वगैरह। ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं, ये कर लेंगे। जो लोग काश्त करते हैं वो पहले काश्त तक मुकम्मल कर्जे में दब चुके होते हैं। तो जो अब ये टैक्स है मुख्तलिफ किस्म के, सारा गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। उनको कम से कम जैसे आपने कोविड में रिलीफ दिया था कि आप ये पेमेंट डिले कर दें, आप ये राइट ऑफ कर दें, इंटरेस्ट पेमेंट खत्म कर दें, इसका सूद माफ कर दें, कोई पैकेज तो दें।
मानसेहरा और इसके मुल्हिक के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग के खतरात बढ़ गए हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतजामिया अलर्ट है और मुतासरा इलाकों में निगरानी के साथ साथ इमदादी इक़दामात भी जारी हैं। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और दीगर वाक़यात में 16 बच्चों समेत 26 अफराद जाम बहक हुए। बलूचिस्तान में जून से अब तक मानसून बारिशों से नुकसानात के हवाले से PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जाम बहक अफराद में 4 खवातीन भी शामिल, 9 अफराद जख्मी भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों में 781 घरों को नुकसान पहुंचा, 101 घर मुकम्मल तबाह और 680 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 357 सोलर सिस्टम तबाह हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों को भी नुकसान पहुंचा। 180 एकड़ ज़रई ज़मीन को नुकसान पहुंचा। 4 सरकारी दफातर और 16 स्कूलों की इमारतें मुतासिर हुई। बोलान में कौमी शाहराह पर बीबी नानी पुल को सैलाबी रैले से नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूब गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक PMD में 95 मिलीमीटर, गोलडा में 66 मिलीमीटर और न्यू कटारिया में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बोकरा में 46 मिलीमीटर, सैदपुर में 40, पीरवदाई में 35 जबकि शमसाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कचहरी और गवालमरी में 5-5 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अटारिया में पानी की अलर्ट सतह 15.3 फुट और गवालमरी में प्री अलर्ट सतह 8.3 फुट मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब के अवाम को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही, जबकि मरियम नवाज कश्ती रानी में मसरूफ हैं। लाइफ जैकेट पहनकर कश्ती में चक्कर काटने से अवाम के दुखों का मदावा नहीं हो सकता। अली अमीन गदापुर की तरह फ्रंट से लीड करें और संजीदा इक़दामात उठाएं।